Viewers, thank you for joining us. The tabling of the JPC report on Waqf has sparked a predictable reaction from the opposition. I am not surprised, you shouldn't be. The opposition has resorted to what can only be described as a dangerous cocktail of fakery and fear-mongering. Their claims are not just misleading, they are a deliberate attempt to malign the Modi government and mislead people. It's time to call out this desperate bid to protect vested interests and derail the much-needed Waqf reform. Viewers, Mallikarjun Kharge claimed that dissent notes from opposition members were redacted or removed from the JPC report, calling it anti-democratic and condemnable. This claim, repeated ad nauseum, is nothing short of an outright lie. Viewers, the facts speak for themselves. The JPC report includes a staggering 281 pages of dissent. I have that page here. Yes, 281 pages, viewers. These notes submitted by the opposition members are part of the official record, attached in the appendix of the report and available for anyone to verify. Viewers, if Kharge's fakery wasn't enough, Owaisi added a layer of fear-mongering that is equally, if not more, dangerous. Owaisi has repeatedly, as you would know, called the Waqf report and the proposed reforms anti-Muslim, accusing the government of targeting the Muslim community. Viewers, this is a classic tactic from Owaisi's playbook. What does he do? Stoke fear, divides communities, and paints the Modi government as villain. But viewers, why are Kharge and Owaisi resorting to such tactics? Why? The answer lies in the vested interests they seek to protect. For decades, viewers, Waqf boards have been mired in allegations of mismanagement, corruption and land loot. The Modi government's proposed reforms threaten to disrupt this ecosystem of exploitation, which benefits a select few at the expense of the larger Muslim community. Viewers, the opposition's tactics of fakery and fear-mongering must be rejected, must be called out. Kharge's lies about dissent notes and Owaisi's divisive narrative are not just an attack on the Modi government. They are an attack on the democratic process and the unity of our country. They undermine the Jai Samvidhan chant that the opposition members give. We deserve better leaders than those who mislead and divide for political gains. Let's call out the liars tonight, viewers. वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना ये ठीक नहीं है और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था, यह बात स्पष्ट दिखती है। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। You heard the reactions. Let's open this up. Sanju Verma, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Harshvardhan Tripathi ji, senior journalist. Karan Verma. Kamruzaman Chaudhary, political analyst. Abdul Razak Khan, member Waqf Board, Karnataka. Vivek Srivastav. And Professor Dharmendra Yadav, national spokesperson of the Samajwadi Party, completes this panel. Kamruzaman ji, let me ask you a direct question. Why was the Congress president, Mr. Kharge, lying in parliament?
झूठ क्यों बोल रहे हैं वो कि डिसेंट नोट नहीं है रिपोर्ट में? आप एक काम कीजिए, ओम बिरला को बोलिए, ओम बिरला जी को बोलिए कि वो अगर झूठ बोल रहे तो उनके ऊपर में प्रिविलेज मोशन लाने के लिए। डोंट ट्राई टू वाइट वॉश द लाइस एंड द क्रिमिनल माइंडसेट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट in trying to take over the Waqf properties by whitewashing bringing in a JPC for the namesake of it, and they're not taking all the stakeholders into confidence and bringing non-stakeholders' opinion into the bill, and you say this is for the betterment of the Waqf. How nonsense it can be. This is nothing but relegating the Muslims, their religious practices, right to practice under the constitution and making them into a second-class citizen under the Indian constitution. Second class? Nothing this more, is a third-class argument. 1 minute. No. This is a third-class argument on the number one show, Mr. Kamruzaman Chaudhary. Mind you, listen to every word that Mr. Khadge has said. वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि डिसेंट नोट नहीं था. I have the report, sir. इसमें लिखा हुआ है from page 547 to 828 डिसेंट नोट से. सुनिए विवेक श्रीवास्तव, सर ये बताइए 547 से 828 तक कितने पेजेस होते हैं? पहली चीज प्रणेश, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, ओवरबोर्ड मत जाया करिए. आपने अभी जो पैकेज जो आप रीड कर रहे थे, जो आपके एडिटोरियल बोर्ड ने आपको दिया, तो आप कह रहे हैं साहब वी नीड बेटर लीडर्स. आपने अपोजिशन को लायर्स बोला. एक चैनल और एक एंकर को अधिकार नहीं है इस तरीके से अपोजिशन के बारे में बातें करने का. आप खड़गे जी झूठ बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं डिसेंट नोट नहीं है. आप खड़गे 1 मिनट सर, 1 मिनट मिस्टर श्रीवास्तव, 1 मिनट. आई डोंट गेट एनीथिंग रिटन और ओरल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ग्लोबल टाइम्स like some of you do. I don't. So don't tell me what I should be saying. You have to answer the question. You can't defend. No. 1 minute, sir, 1 minute. I'm asking you a simple question, Vivek Srivastav. Why do you get so rattled? I am asking you, why did... Sir, आप reasonable आदमी है, पता नहीं क्या हो जाता है आपको. You think, no, you want to steal the limelight? You want to steal the limelight, Vivek Srivastav? नहीं, आप कौन होते हैं बोलने वाले कि they are bad leaders? नहीं सर, आप मुझे बता दीजिए ना सर, आप कौन होते हैं? I am an equal stakeholder, sir. आप कौन होते हैं? आपकी क्या I am an equal stakeholder. No, 1 minute. आप stakeholder नहीं हो. I am an equal stakeholder. Kamruzaman Chaudhary ji was saying non-stakeholders. Who are these non-stakeholders? Who are these non-stakeholders? How can Mr. Owaisi claim to speak for all Muslims? Who is he? Who is he? How many MPs does his party have? Who is Mr. Owaisi? No, 1 minute. 1 minute. Who is Mr. Owaisi? How can he claim to speak for all Muslims? He lost both. I am an equal stakeholder. Don't you question my credentials, sir. Every individual in this country has a right to ask questions. 1 minute. Answer the question. Why did Mr. Khadge lie in the parliament? झूठ क्यों बोला खड़गे जी ने? की सीट पे बैठे हैं? नहीं, सॉरी सर. हाँ, अब आप सुन लीजिए. पहले जब आप एंकर की सीट पे बैठे हैं तो आप ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं है. एक एंकर की एक मर्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको रियलाइज करिए जरा. मैं प्रवक्ता के रूप में बैठा हूं, इसमें क्या गलत है? कृपा करके ऑपोजिशन के लीडर्स को बैड लीडर्स मत कहिए. नहीं, क्योंकि वो बाद में उसको ऐड किया गया है. ओम बिरला साहब को जरा आप आज जो है ना जरा पता करिए, वरना कल आप अपोलोजाइज करेंगे इस बात पे कि कब इस चीज को दिया गया और कब इस चीज को जोड़ा गया और जगदम्बिका पाल ने क्या बोला. So there are many things. Don't talk about it. मैं बता देता हूं विवेक श्रीवास्तव, लेट्स गो 1 by 1. मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे रहा हूं. आप भागिए मत. आप बोल रहे हैं बाद में ऐड किया दिया. लिसन टू मी सर, 1 minute. आप मत दीजिए. मैं दे रहा हूं. आई कम प्रिपेयर्ड टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. क्यों दे रहे हैं आप सर? आप बीजेपी हैं सर. आप बीजेपी हैं. मैंने बोला मैं इक्वल स्टेक होल्डर हूं. के नेता को बोलने दीजिएगा ना. आप एंकर हैं. आप न्यूट्रल रहो ना सर. आप मेरी तरफ भी रहो, उधर भी रहो. मैं आप ही के तरफ हूं सर. मैं आपके तरफ इतना हूं कि सारे पैनलिस्ट जो हमारे व्यूअर्स हैं सब जानते हैं ना. मैं आप ही के तरफ बोल देते हैं. हाँ जी. आप बताइए कि जब 281 पेजेस ये है डिसेंट नोट, इसका जी तो झूठ क्यों बोलना? ये शुरू में नहीं था. जब ओरिजिनल चीज पेश की गई थी, सुन लीजिए सर, ये शुरू में जोड़ा नहीं गया था.
जब हो हल्ला मचाया गया, जगदम्बिका पाल जी को वी टुक हिम टास्क फॉर डूइंग दिस, तो ये बाद में टेबल किया गया है। विद योर परमिशन लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। एक छोटा सा सवाल, विवेक श्रीवास्तव, एक छोटा सा सवाल। अगर आप बोल रहे हैं, अगर मैं आपकी बात मान लूं दैट दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल रिपोर्ट, वाज एडेड लेटर, उसके बाद आफ्टर इट वाज एडेड, व्हाई डिड द ऑपोजिशन वॉक आउट? यू गॉट व्हाट यू वांटेड? अरे वी आर वॉकिंग आउट बिकॉज इट इज नो, इट इज वी डू नॉट सपोर्ट दिस 15-11 वाली वोटिंग। हमने फार्मर्स बिल को भी अपोज किया था। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जो मेरे यही रखा हुआ है सामने, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है पॉलिटिकल पार्टी को दैट इवन इफ वी आर इन द ऑपोजिशन एंड वी डू नॉट हैव द ब्रूट मेजॉरिटी, इफ वी फील दैट अ बिल इज नॉट एज पर द ethos ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड माय प्रीएम्बल, आई कैन प्रोटेस्ट इन द पार्लियामेंट, आई कैन प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स, आई कैन डू अ डेमोन्स्ट्रेशन। ये हमारा राइट है। अगर हमने फार्मर्स बिल में भी यही किया था, और हमें खुशी है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपोलोजाइज किया, और हम चाहेंगे इसको वापस लिया जाए। The constitution does not give you a right to legitimize land loot. This is what वक्फ stands for. रिफॉर्म की जरूरत ही नहीं है, बंद कर देना चाहिए वक्फ की दुकान। संजू वर्मा, हाउ विल यू कन्विंस ऑपोजिशन? वो बोल रहे हैं कि ये जो बिल है क्रिमिनल माइंडसेट से लाए हैं। कमरू जमान चौधरी's words, not mine. यू नो प्रणेश, अभी मैंने बड़े ध्यान से सुना, ये कहना कि प्रणेश इज इक्वल टू बीजेपी गलत है, बिकॉज अभी 8:09 हो चुके हैं। 9 मिनट के बाद बीजेपी डिबेट में अपना पक्ष रखने जा रही है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स गेट दिस वेरी वेरी क्लियर। द वक्फ बिल अमेंडमेंट्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 15 to 11. 282 dissent notes have been added in a 655-page report. Discussions were held over 111 hours. Representatives in the Waqf include members from over 12 states and union territories. So for anyone to sit here and say that things were done summarily is absolutely balderdash. In fact, the last 44 clauses which were added to the Waqf Amendment Bill were done over 98 hours of heated discussions across the spectrum. So there have been deliberations, discussions, there have been agreements, disagreements, and then with a 15 to 11 majority, the changes were adopted. Now, let's get one thing very clear. Forget, you know, the technical argument. लेमन की तरह सोचते हैं, because आपका जो चैनल है, वो हर किस्म के लोग देखते हैं. If you are an NGO today in India, you are subjected to rules under the FCRA Act of India. If you are a charitable institution, Pranesh, you are subjected to rules under the Charitable Institutions Act of 1920 and 1925. Now, if you are a profit-making entity, you have to pay income tax under the Income Tax Act of 1961. But if you want relief, you have to file a Form 12 and then you get benefits under Section 11 of Income Tax Act. अब ये मजे की बात ये है, वक्फ कहता है मैं तो ना NGO हूं, मैं ना चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हूं, I am not a company that can be controlled under the Companies Act of 1956 or 2013. आप Companies Act के तहत कंट्रोल नहीं होना चाहते, आप FCRA Act के तहत कंट्रोल नहीं होना चाहते, आप Religious Institutions and Endowment Act के तहत कंट्रोल नहीं होना चाहते. You basically want to be a law unto yourself. It is then that the Modi government decided on 2-3 key things very quickly. Just give me 20 seconds. Which are the 3 key amendments which have raised a stink? A, the amendment says only individuals with lawful ownership can create a waqf, preventing disputes arising from unclear property claims. Point number 2, properties declared as waqf, whether before or after the act's enforcement, cannot include government land. And the last and very important one, the authorities to settle land disputes between waqf and government properties will now shift from the waqf tribunal to a district collector. सबसे बड़ा Now, what is the problem in all of this? Abdul Razak. 10 seconds. Abdul Razak Khan. Now, the points that Sanju Verma has made. What is your problem? Why is Mr. Owaisi saying that this is anti-Muslim? Why? On what basis? Pranesh, first of all, the idea of referring this bill to JPC was to listen to the opposition and take their ideas and come to a conclusion. Now, Jagdambika Palji, the chairman of the Waqf panel, actually he mistook Joint Parliament Committee JPC to BJPC.
he mistook that and he understood that भारतीय जनता पार्टी कमेटी बना दी उसको। आप इसको समझिए कि 44 amendments were presented to the chairman from the opposition. He did not feel good to accept even one of the amendments, proposed by the opposition, but he went ahead and accepted 14 amendments from the ruling dispensation. First of all, the way he conducted himself, he never allowed the opposition to go ahead and make their statements. Now, firstly, let me tell you, these are not lands granted by the government. These are lands donated by Muslims for their welfare. Mr. Now Abdul Razak, don't go there because no, sir, 1 minute. Don't talk about donation. The intended purpose was donation. The Waqf has, come to be known as a body. No, 1 minute, sir. A body that specializes in land grab, and its powers are infinite. You are saying feel good में उन्होंने सुना नहीं. Now, if the points made by the opposition were not accounted for, ये 281 pages में क्या है? जगदम्बिका पाल जी ने कुछ ऐसे लिखा है क्या इसमें? 281 pages of dissent हैं तो करण, सर जो what is this hue and cry about? पहले झूठ बोलो फिर बोलो एंटी मुस्लिम है, ये क्यों करते हैं ऐसे? देखिए, मैं आपको प्रणेश कोट एक करता हूं, 21 सितंबर 2024 का ओवैसी जी का कोट है कि अगर वक्फ अमेंडमेंट आ जाता है उसके बाद 1.21 लाख प्रॉपर्टीज जो यूपी में है, हमारे पास 1.12 लाख के कागज नहीं है। खुद मान लिया उन्होंने कि हमारे पास कागज नहीं है प्रॉपर्टीज के, ये लैंड जो ग्रैब करी गई है वो सब छिन जाएगी, ये प्रॉब्लम है इनके पास। अब दे विल गिव इट ऑल सॉर्ट्स ऑफ कलर्स एंड अनडेमोक्रेटिक, एंटी मुस्लिम। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे डू नॉट वांट द लॉ टू बी इंप्लीमेंटेड इन टोटो। इन्हें डर लगता है कागज दिखाने से बिकॉज वो छिन जाएगा। एंड टू आंसर टू दिस जेंटलमैन, if they had so much of land, from 2009 to 2024, their land has gone up from 3 lakh properties to 8 lakh properties, from 4 lakh acres to 9.5 lakh acres. Then how do you claim that Muslims are weak and they need reservation? How do you claim this then? दोनों चीजें चाहिए आपको, लैंड भी हमारी है और हम गरीब भी हैं, हमें रिजर्वेशन भी दीजिए, तो ये दोनों चीजें नहीं चल सकती। एंड प्रणेश, सिर्फ पार्लियामेंट्री, सिर्फ जेपीसी की बात नहीं है ये। So many Muslims, the Aga Khani community, the Boras, the women, they have all come up and said we need reforms in this. The Sachar committee, which Owaisi keeps tom-tomming about, the Sachar committee has said it needs reformation, it needs reforms, it needs transparency and accountability. And 2006 JPC, Pranesh, it was headed by K. Rahman Khan. भाई वो तो हिंदू नहीं है ना, वो एंटी मुस्लिम तो नहीं है। उन्होंने कहा वक्फ नीड्स ट्रांसपेरेंसी, इट नीड्स सर्वे ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज। तो ये क्या फैलाना चाह रहे हो? और विवेक जी कह रहे हैं आप कैसे पत्रकार है? अरे विवेक जी, अगर मैं कह दूं आप चाइना से है तो प्रणेश जी तो कहेंगे ना आप चाइना से नहीं, आप इंडिया से हैं। भाई सच तो बोलना उनका काम है ना। अपेंडिक्स में जो सारे डिसेंट नोट्स एडेड थे, कोई अचानक से प्रिंट आउट लाके तो ऐड कर नहीं देगा। इसमें जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज हुई थी फॉर जगदम्बिका पाल, ये चाह रहे हैं उसको भी डिसेंट नोट्स पे इंक्लूड करो। तो एटलीस्ट रीड एंड राइट, समझिए मैटर को क्या। हर्षवर्धन जी, कुछ भी वन साइड ट्रैफिक मत चालू कर दिया करिए। हर्षवर्धन जी, ये इस पे हमने पता नहीं कितने डिबेट्स किए हैं और तर्क वही है, जब ये काउंटर नहीं कर पाते तो बोलते हैं एंटी मुस्लिम है, ये सरकार का क्रिमिनल माइंडसेट है। अभी बोला क्रिमिनल माइंडसेट बोला कमरुज़मान चौधरी जी ने। यूजुअली वो रीजनेबल बोलते हैं, लेकिन आज उन्होंने क्रिमिनल माइंडसेट तक बोल दिया। मैं अगर सवाल पूछता हूं विवेक श्रीवास्तव से तो वो गुस्सा हो जाते हैं। आपके तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप उनको कुछ समझाइए। म्यूट है आप सर। हर्षवर्धन जी, आवाज नहीं आ रही है जी। अब आ रही है, बोलिए। नहीं आ रही है, सवाल है। जब भारत की संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में बात करें, यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था क्या है? जनता के तौर पर किसी को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो एक पार्टी होती है, एक समूह होता है, उनकी सरकार बनती है। लेकिन उसके बावजूद सरकार बने, सरकार में कितना बहुमत मिला, उसके आधार पर उस राजनीतिक दल या उन राजनीतिक दलों के समूहों को यह अधिकार होता है कि वो देश के लिए नीति, नियम, कानून तय कर सकते हैं। जो वक्फ लॉ है, वक्फ कानून है, जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई
कॉन्स्टिट्यूशन का इनबिल्ट पार्ट था, उसकी मूल प्रस्तावना या मूल भावना का हिस्सा नहीं। ये संविधान के दायरे में ही कानून बनाया गया, इसमें अलग अलग संशोधन हुए, सरकारें नहीं तो संशोधन पर ऐतराज नहीं होता रहा। अब अचानक ऐतराज हो रहा है। कहा गया कि एकदम बुलडोज कर देती है मोदी सरकार, तो जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी में भेजा गया सिर्फ इसलिए नहीं कि अपोजिशन के जो पार्लियामेंटेरियंस है उनकी आवाज आए, कम से कम पार्लियामेंट्री प्रोसेस को पढ़ के समझ के डिबेट्स में आना चाहिए। जब जेपीसी बनती है तो उस इशू से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिससे उदाहरण के लिए राज्यों के वक्फ बोर्ड होंगे, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड होंगे, जैसे अभी कहा कि आगा खां, अहमदिया, अलग अलग जो समुदाय समाज होंगे, मुस्लिमों के भीतर जो लोग होंगे, जो कोई वर्ग होगा जो परेशान होगा कि ये वक्फ बोर्ड बना तो है लेकिन ये अमीर मुसलमान, और उसको मैं कहता हूं कि सत्ता पोषित मुसलमानों का ये पूरा खेल है, ये गरीब और अमीर मुसलमान का खेल है। अब खड़गे साहब इतना क्यों नाराज हो गए? खड़गे साहब इसलिए नाराज हो गए कि जब कर्नाटक से मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल आया तो उन्होंने खड़गे जी के ऊपर भी आरोप लगाए कि इन्होंने भी हमारी संपत्ति हड़प ली। और जब इस तरह की चीजें आती हैं सामने तो लगता है कि क्या पूरा पॉलिटिकल सिस्टम वक्फ बोर्ड की आड़ में मुसलमानों का हक मार रहा था? क्या कुछ अमीर मुसलमान, कुछ बड़े मुसलमान, कुछ कलफ लगाकर कुर्ता में कलफ लगाकर टीवी पर डिबेट करने वाले मुसलमान, वो गरीब मुसलमानों का हिस्सा खा रहे? वरना जिसके पास इतनी लाखों एकड़ जमीन हो उसके समाज के लोग कैसे रह सकते हैं? और मैं बार बार कहता हूं ये तो यतीम, गरीब, गुरबा, विधवा उनके लिए था ना, क्यों नहीं कर पाई? और अगर सिर्फ आपको श्मशान और जिसको कहते हैं ना कि आपको अपना कब्रिस्तान और मस्जिद और वो सब करना है तो ठीक है, उसके लिए अलग से हो जाएगा। फिर आप अलग से लैंड ग्रैबिंग में क्यों जाते हैं? फिर अचानक आपको एयरपोर्ट, पार्लियामेंट, विधानसभा, पता नहीं क्या क्या, वो गांव भी जहां 1500 साल पुराना मंदिर है वहां भी आप वो लेके आ जाते हैं। वहां संदेह खड़ा होता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, पब्लिक स्टेक होल्डर्स वो जेपीसी के सामने आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी, डिसअप्रूव करेगी। प्रोफेसर यादव, आपकी भी पार्टी के जो बड़े नेता हैं डिंपल यादव, उन्होंने भी यही कहा जो खड़गे जी ने कहा, द वे डिसेंट नोट्स वर गिवन बाय ऑपोजिशन मेंबर्स, दे वर नॉट इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट। ये तो सर सरासर गलत है। प्रणय जी बोलिए सर, बोलिए। प्रणय जी, सबसे पहले तो जो आपका बिल है, हाँ, जो बिल है, बिल के नाम और अंदर के कंटेंट में बहुत ही विरोधाभास है। जो भारतीय जनता पार्टी की एसयूपी है, धोखा करना, नाम कुछ और है, कंटेंट अलग है, ये पहली आपत्ति हमारी है। दूसरी आपत्ति है, इस देश के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई जेपीसी बनी हो और उसमें विपक्ष के एक भी सुझाव नहीं माने गए हों। आप एक बिल के अंदर 44 संशोधन लाते हैं और 44 संशोधन में आप एक भी विपक्ष का नहीं रखते हैं। ये एक तरह से एंटी मुस्लिम तो है ही है, एंटी नेशनल भी है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। वो इसलिए है कि 44 संशोधन में अगर एक भी सजेशन आप विपक्ष का नहीं मानते तो गलत है। अब इसमें कमियां क्या क्या मैं आपको बता दूंगा करके। पहली कमी यह है कि जो डिलिमिटेशन एक्ट को खत्म कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पोषित रियल एस्टेट का उद्योग और व्यापार है, वो हजारों एकड़ जमीन पर जो अवैध कब्जा है वक्फ की जमीन पर, खासकर हरियाणा में और पंजाब में। नहीं प्रोफेसर यादव, आप जो बोल रहे हैं कि वक्फ की जमीन पे कब्जा है, जरा ये भी बता दीजिए कि कोई अगर 1500 साल पुराना मंदिर है और वो पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है तो इसका क्या होगा? फिर आप बोल रहे हैं कि 44 अमेंडमेंट्स थे, उसमें से एक भी नहीं लिया। अब मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं। दिल्ली में कांग्रेस की सीट 3 इलेक्शन में 0 आई, तो क्या इलेक्शन अमर्यादित हो गया? एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल? प्रणय जी, आप मुझे सुनिए। प्रणय जी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए हो गया कि जेपीसी में जो विपक्ष की भूमिका है, आप 44 संशोधन लेकर आते हैं और उसमें एक भी सजेशन विपक्ष का नहीं मानते हैं। प्रोफेसर यादव, ये तो वोटिंग से होता है सर, अगर नंबर नहीं है तो कहां से आएंगे? और एंटी इंडियन इसलिए है कि संजू वर्मा, इसका जवाब दीजिए। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग चार्ज। वो बोल रहे हैं कि 44 में से एक तो रख लेते आप लोग, क्या करते हैं? सबका साथ सबका विकास। Pranesh, let me make one thing very, very clear to you. In the year 1923,
there were only 3,000 Waqf properties. Come 1954, there were 11,000 Waqf properties. Come 2009, there were 52,000 Waqf properties. But today, 2025, there are more than 8.7 lakh Waqf properties, worth more than 9.4 lakh acres, worth monetarily more than 2 lakh crore. So for anyone to sit here and say that this is a majoritarian agenda is a whole lot of balderdash. Point number one. Point number two, 4 main sections हैं जहां पर amendments आ रही हैं. A, there is section 40 which earlier said if the Waqf board decides that this is a Waqf property, no questions asked, it will become a Waqf property. हमने कहा section 40 का amendment होना चाहिए. Section 83 says Waqf has the powers of a civil court. We said no, Waqf cannot be a law unto itself. The third, section 82, which says Waqf properties cannot be audited. We said Waqf properties have to be audited. Then section 18, 19, 20, 21, 22, 23, which said that non-Muslims cannot be part of Waqf state board. We said there have to be at least 2 non-Muslims in every state Waqf board. These are the key amendments. Right. But जो सबसे बड़ी amendment है, जिसके कारण इनके पेट में दर्द हो रहा है, your audience needs to hear this. The most important amendment is that we are ending a term called Waqf by use. Waqf by use allowed properties like mosques, graveyards to be used for religious purposes and to be recognized. We've had many debates on it. Vivek Srivastava, Waqf by user चला गया तो क्या problem है? प्रणेश 30 seconds तो दीजिए. प्रणेश 30 seconds. जो हर्षवर्धन जी ने कहा और करण ने कहा, entire village on the banks of Kaveri River. You know, we all know. Can I finish? Vivek Srivastava. ये कहानियां मत सुनाइए अब आप. You are trying to make a background without anything authentic. आप एंकर नहीं हैं. ये authentic नहीं है आपकी एक भी बात. You are not the anchor. You are not the anchor. नहीं आप सुन लीजिए मैडम. No, ma'am, make your point. Vivek Srivastava, you know, ऐसे मत कीजिए sir. 1 minute. Ma'am, quickly make your point. 10 seconds. Pranesh, 20 seconds. Entire village on the banks of Kaveri River. Islam is 1500 years old, but Sundareshwar temple in Tiruchirappalli, which is 2000 years old, is claimed by Waqf. Entire districts of Pune and Parbhani. Banjara Hill Park area in Telangana, Surat Municipal Corporation, Anil Ambani and Mukesh Ambani's properties, Army headquarters at Poonch and Rajouri, Gurudwara in Yamuna Nagar, Indira Gandhi International. Right, all of this is documented. Vivek Srivastava, answer this question. Mukesh Ambani's property. अब आप सुन लीजिए. देखिए दुख तो यही है इन लोगों को सबसे बड़ा कि अंबानी साहब की प्रॉपर्टी चली जाएगी, अडानी साहब की प्रॉपर्टी चली जाएगी. इसी वजह से तो ये बिल लाया जा रहा है. ये पहली चीज. दूसरी चीज, इसमें प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स में कहा गया साहब 5 साल अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे तभी आपको डोनेशन दे सकते हैं वक्फ की. करण वर्मा जी, आपके मैं घर में कैमरा लगाऊंगा और चेक करूंगा कि रोज आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं या नहीं, और तभी आप मंदिर के अंदर डोनेशन दे पाएंगे. ये समझ लीजिए आप. दूसरी चीज, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में 2 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट बिठाती है. एक सिविल जज होता है और दूसरा एक ब्यूरोक्रेट होता है. दोनों के स्टैट्यूटरी लेवल्स डिफाइंड है. तो ये नहीं होता कि वक्फ में कोई भी किसी को ले ले. वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं. अगर उसके कागज नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, तो वक्फ में नहीं जाएगी. भ्रष्टाचार ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी में भी है, भ्रष्टाचार नोएडा अथॉरिटी में है, डीडीए में है, एमसीडी में है. इसको पहले सुधारो. विवेक श्रीवास्तव कहां चले गए? सुनिए 1 मिनट. विवेक श्रीवास्तव, लिसन टू मी. आपको कैमरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी करण वर्मा के घर में. मैं आपको जवाब दे देता हूं. ये जो क्लॉज है 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ये क्यों लगाया सर पता है आपको? आपको पता है, लेकिन आप मानेंगे नहीं. आप बता दीजिए सर. क्योंकि वो मैगी नूडल्स के तरह कन्वर्जन होता है, इंस्टेंट कन्वर्जन. प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को इंस्टेंट कन्वर्जन होता है सर. इसीलिए जैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है वैसे इंस्टेंट कन्वर्जन होता है. करण, अरे सर मेरी बात सुनिए. अरे देखिए, विवेक जी को राइस बैक कन्वर्जन और ये वाले कन्वर्जन के बारे में पीएचडी है. और ये जो पुलिस स्टेट की बात करते हैं ना, कैमरा लगाना, ये चाइना से जब वापस लौटते हैं या नॉर्थ कोरिया से, इनको यही सब ख्याल आते हैं दिल में, कैमरा लगाना, सर्वेलेंस करना. पर ये भारत है भाई, और डेमोक्रेसी है यहां पर, ये सब नहीं होता यहां. दूसरी बात प्रणेश, टू रिप्लाई टू द पॉइंट मेड बाय द समाजवादी पार्टी पर्सन, ये जो बात कर रहे हैं बार बार, दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. मैं इनसे पूछना चाहता हूं जरा,
आर्टिकल 14, 15, 21 जिसको बार बार ओवैसी कोट कर रहे हैं, क्या इस तरह के सेपरेट लैंड लॉज या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लॉज हिंदूज, क्रिश्चियंस, ज्यूज, बुद्धिस्ट किसी के लिए भी है इस कंट्री में? And is it not against the principle of natural justice, Pranesh, where the onus to prove whether the land is his or not is on the other person? Waqf can claim anything, दूसरे को प्रूव करना है कि ये उसकी है कि नहीं। तो खुद तो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बात हो गई। एंड दे आर क्राइंग हॉर्स कि इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कागज आपको दिखाने हैं, आप नहीं दिखा रहे हो। कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये कैमरा लगवाएंगे। कमरुज़्ज़मान चौधरी जी, आपने इससे पहले बोला था सर, यू बिगैन बाय सेइंग that, you know, non-stakeholders, you use that word. First of all, you know, I object to it. We are all equal stakeholders, sir. But, you know, there is this problem, contention that why have you included non-Muslims? Non-Muslims are also beneficiaries in the Waqf Act, so they have a stake. अब इसमें क्या problem है? No. Pranesh, just give me some 1 minute time. Let me explain to you a very important agenda, how the agenda has been set against the Waqf bill. Few days ago, very recently in our memory, one Sarkari Musalman heading a organization named All India Muslim Jamaat came out of nowhere and claimed the entire Kumbh land as Waqf land. Has the BJP arrested this Sarkari Maulana? Or has this Sarkari Maulana received some funds from the BJP so that the agenda is driven that a 1500-year-old temple is being taken over by the Waqf? Chaudhary ji, which Sarkari Maulana of the Waqf board went to claim the temple there? 1500-year-old temple, वो बता दीजिए sir. Karnataka government has already given out a rejoinder. Tamil Nadu government has already issued rejoinders on that. So you better go to their archives and check what was the rejoinders. I am not here to clarify a journalist what is the actual fact. Now come to the point, please. If you permit me another 30 more seconds. My basic question out here. Let's say the entire BJP dismisses the Waqf Act. Let's say there is no more Waqf Act in the India. What happens to this Waqf property? You must remember Waqf properties are not land. हर्षवर्धन जी, इसका एक जवाब दे दीजिए। सीधा सवाल पूछ रहे हैं, वो पहले भी हमने डिस्कस किया, लेकिन कोई बात नहीं, पुरानी बातें हैं, इसको जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, कमरुज़्ज़मान साहब क्या कह रहे हैं स्पेसिफिक? वो पूछ रहे हैं कि अगर वक्फ एक्ट को आप एबॉलिश कर दो या बोल दे सरकार की ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या होगा प्रॉपर्टी का, या जिनकी प्रॉपर्टी है उनका क्या होगा? नहीं, देखिए, मुझसे पूछेंगे तो चूंकि मैंने इसलिए सवाल इसलिए कहा कि मेरी निजी राय तो है कि इस देश में वक्फ का कानून होना ही नहीं चाहिए। स्पष्टता से कह रहा हूं। क्या आपको सेकुलर गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं? क्या आपको देश के कानून पर मुसलमानों को भरोसा नहीं कि वो मुसलमानों का भला करेंगे? मेरा तो ये निजी तौर पर मानना है, लेकिन मेरी राय नहीं होगी ना। इसीलिए तो संसद है, इसीलिए संसद सदस्य हैं और वहां पर जेपीसी है। तो आप दोनों काम कैसे कर सकते हैं? मैं कई बार प्रणेश आपके साथ भी डिबेट में कह चुका हूं कि किसी इस तरह के बोर्ड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो लैंड ग्रैब का काम करे, जो अलग से अलग एक ठेकेदार किस्म के लोगों को पैदा कर दे। मेरा मानना है वक्फ बोर्ड जैसी चीज होनी नहीं चाहिए। आपको क्या है, मस्जिद, क्या दरगाह, मस्जिद इंतजामिया कमेटी, कब्रिस्तान, ये सब नहीं है, वो होने चाहिए, उनका वो काम करें। लेकिन एक तरफ तो आप कहते हैं कि इसके जरिए हम उनकी जो मदद करेंगे मुसलमानों की, गरीबों की, विधवाओं की, क्या करते हैं आप? बच्चों को आज तक जमीन हड़प लेते हैं, लोग बता देते हैं, जमीन हड़प लेते हैं, मंदिर हड़प लेते हैं, चर्च को भी नहीं छोड़ते। ये तो है, बट अब ये तो पहला फेस ऑफ है पार्लियामेंट में। अब आगे देखते हैं इस पे और कितने डिबेट्स होंगे। वी विल